So I was saying, if you want to live long, मैं कह रहा था अगर आप लंबा जीना चाहते हो, see who are the people who are in close circle with you. तो देख लो वो लोग कौन है जो आपके करीबी हैं, आपके दिल के पास है, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं. Because if those people walk in dishonor, क्योंकि अगर वो लोग निरादर करके जीते हैं दूसरों का, soon that dishonor will enter your heart वो निरादर जल्दी आपके दिल में उतर आएगा and come out from your mouth. और आपके मुंह से निकलेगा. And the Bible clearly teaches dishonor will cut a life. और बाइबल सीधा सीधा सिखाती है निरादर का जीवन आपकी जिंदगी को छोटा कर And देगा. honor will extend the life. आदर आपकी जिंदगी को लंबा कर देगा. Honor your mother and father. Honor people who are in authority. Honor your bosses, because honor is so powerful. अपने माता पिता का आदर करें, अपने बड़ों का, अपने अगुओं का आदर करें, जो दफ्तर में आपके अधिकारी हैं उनका आदर करें, जो देश के अधिकारी हैं उनका आदर करें. Okay, so Proverbs 6:2, you are snared by the words of your mouth. नीति वचन 6 उसका 2, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसता है. A snare means a trap. ये जो फंसने की बात कर रहा है वो फंदे की बात कर रहा है. It's a trap that was set to catch animals. वो फंदा वो होता है जो जानवरों को पकड़ने के लिए, कैदी बनाने के लिए लगाया जाता है. So if a snare is a trap, we can read the scripture as you are trapped by the words of your mouth. तो अगर स्नेयर जो है वो फंदे की बात करता है तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, तेरे मुंह के वचन तेरे लिए फंदा बनते हैं. And I speak bad, then I get trapped and I give all the glory to God. अगर मैं बुरा बोलता हूँ तो मैं फंदे में फंसता हूँ और उसकी सारी गलती किस पे डालता हूँ? परमेश्वर पे डालता हूँ. No. नहीं. Okay. You are taken by the words of your mouth. तू अपने मुंह के वचनों के कारण बंधी बनता है. You are taken captive. You are made captive by the words of your mouth. तू अपने मुंह के वचनों के कारण बंधी बनाया जाता है. Amen. Church, are you getting what I'm saying? Bible is not saying you are taken captive or you are snared by your thoughts. Bible is saying you are snared and taken captive by your words. बाइबल ये नहीं कह रही कि तू अपने मुंह के, अपने मन के विचारों से, लेकिन वो कह रही है अपने मुंह के वचनों से पकड़ा जाता है, बंदी बनता है. Each one of us, Satan will bombard wrong thoughts into our mind. हम में से हर एक के मन में शैतान बहुत से बुरे विचार देता है. Even Jesus wasn't immune from that. यहाँ तक कि यीशु भी इस बात से नहीं बचा. Bible says he was tempted with every temptation known to man. बाइबल कहती है जो कोई परीक्षा मनुष्य को पता है वो सारी परीक्षा यीशु गुजर And चुका. temptation comes in the form of thoughts. और वो परीक्षा विचारों के रूप में आती है. But if you don't speak that bad thought out loud, an unspoken thought dies unborn. अगर आप उस वचन को अपने मुंह से नहीं बोलोगे तो वो जो बुरा विचार है अगर बोला ना गया तो ऐसे ही मर जाएगा. I hope you're getting what I'm saying. मैं उम्मीद करता हूँ आप जान रहे हैं मैं क्या. Any unspoken wrong thought dies unborn. कोई भी बुरा विचार जो मुंह से नहीं बोला गया वो ऐसे ही मर जाता है. That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, don't worry by saying what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. ये कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहाँ रहेंगे. Because thoughts are going to come. क्योंकि ऐसे विचार आएंगे. As long as you live on this earth, जब तक दुनिया में हो, Satan will try to snare you with your words. शैतान आपके मुंह के वचनों के द्वारा आपको फंसाना चाहेगा. Let me tell you this, church. मैं बता दूं ये, Satan is the powerless fellow. शैतान सामर्थ्यहीन, बलहीन है. I've been saying this for years. If he was so powerful, he would have killed me by now. मैं सालों से इस बात को कहता आ रहा हूँ, अगर उसमें थोड़ा सा भी सामर्थ्य होता मुझे मार दिया होता. I would be sleeping at night. He would have come. You are. मैं रात को सो रहा था, आके गला दबा देता. No, नहीं कर सकता. Satan. God has not made Satan in his image. He is not a creator. परमेश्वर ने शैतान को अपने स्वरूप में नहीं बनाया. God did not give him life and death in his tongue. Otherwise, you know what would have happened? He would have killed all the believers by now. परमेश्वर ने शैतान के मुंह में जीवन और मृत्यु नहीं दिया, नहीं तो अब तक वो सबको मार चुका होता. So what he does is, तो वो क्या करता है? he kills you वो आपको मारना चाहता है with your own words. आपके खुद के मुंह के वचनों से. And for him to kill you with your own words, he has to put wrong thoughts in your mind. और आपके मुंह के वचनों से आपको मारने के लिए उसको आपके दिमाग में फालतू के विचार डालने पड़ेंगे. Church, I hope you're getting what I'm saying. मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे हो. If you apply this principle, अगर आप इस सिद्धांत को काम में ले you will start walking in victory. तो आप जय में जियोगे. So that means इसका मतलब
When Satan gives you a thought, जब शैतान आपको बुरे विचार देता because है, he wants you to speak it out loud. क्योंकि वो चाहता है कि आप इन विचारों को मुंह से बोलो, So he would say, तो वो कहेगा you're going to die young. कि तू जवानी में मरेगा। You start saying, आप कहना शुरू करो, it is written, लिखा है my God shall satisfy me with a long and healthy life. कि मेरा परमेश्वर मुझे लंबी आयु से तृप्त करेगा। He says, you will never have enough. वो कहता है तेरे पास कभी भी बहुत आयत नहीं होगी। You say, आप कहें my God has anointed me with fresh anointing and my cup runs over. कि मेरे परमेश्वर ने मुझे ताजे अभिषेक से अभिषेक किया है, मेरा प्याला उमड़ता रहता I है, am blessed. मैं आशीषित हूँ। Because he gave the same temptations to Jesus. क्योंकि उसने वही विचार यीशु को दिए। He said, if you are the son of God, then command this. उसने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो आदेश दे। No, Jesus spoke opposite to what he said. लेकिन यीशु ने जो बोला वो उसके विचारों के विपरीत था। Guys, is this making sense to you? So Satan cannot catch you, and Satan has no hook over you unless you give him, you become vocal about the thoughts that he gives you. शैतान तब तक आपको फंसा नहीं सकता, आपको बंधी बना नहीं सकता जब तक आप वो गलत विचारों को मुंह से ना बोलो। For example, you ate some peanuts उदाहरण के लिए आपने मूंगफली खाई and you had a stomach ache. और पेट में दर्द हो रहा है, मान लीजिए, Satan comes, वो आएगा, says, you are allergic to peanuts. बोलेगा मूंगफली से एलर्जी है तुझे। And then you keep saying, oh, are there peanuts in this? I am allergic to peanuts. I am allergic to peanuts. I am allergic. And maybe in 5 years, you have said it 10,000 times that you're allergic to peanuts. And guess what? Every time now you eat peanut, you become a peanut. सो मान लीजिए आपने मूंगफली खाई और बाद में पेट दर्द हो रहा था, शैतान ने आके बोला कि मूंगफली खाने से तेरे को पेट दर्द होता है, तो अगली बार जब कुछ खाने के लिए सामने आया जिसमें मूंगफली है तो आप बोलोगे मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे मूंगफली खा के पेट दर्द होता है। और 5 साल में आपने इस बात को इतनी बार बोल दिया कि जब भी मूंगफली सामने आएगी पेट वैसे ही दर्द हो जाएगा। I was so allergic to boiled eggs. I mean, like, I'll eat boiled egg, I'll have terrible stomach ache. मुझे उबले हुए अंडों से बहुत पेट दर्द होता था And I could not swim. और If I'll go swimming, my ears will pain. और मैं तैर भी नहीं सकता था क्योंकि तैरने से मेरे कानों में दर्द होता When था। I came to the Lord, जब मैं प्रभु के पास आया I started speaking. मैंने बोलना शुरू किया, Lord, प्रभु I want to enjoy eggs. मैं अंडों को खाना Because your चाहता हूं word मजे से। says everything should be received with thanksgiving. क्योंकि आपका वचन कहता है सब कुछ धन्यवाद देके ग्रहण By करो। faith, विश्वास से I ate eggs मैंने अंडे खाए and I have been eeting eggs और तब से खा and रहा I हूं will eat eggs as long as I want to eat और eggs खाता रहूंगा जब तक खाना चाहता and हूँ there is no problem. और कोई दिक्कत नहीं है। How did Satan snare me? शैतान ने By मुझे my कैसे फंसाया? words. मेरे मुंह के वचनों से। Guys, is this making sense? समझ में आ रहा है? And in the same way, I went to swimming pool. वैसे ही मैं स्विमिंग पूल में गया, I said, I am gonna swim मैंने कहा मैं स्विमिंग करूंगा because I'm a child of God and Father has made all these things for me. क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, उसने ये सारी बातें मेरे जीवन के लिए बनाई हैं। And I did tuk, tuk, tuk. मैं पानी में कूद गया, स्विमिंग किया, No air pain. कान में दर्द Now नहीं, I can be in the swimming pool for hours. अब घंटों तक मैं पानी में रह सकता हूँ, No pain. कोई दर्द नहीं। Satan snares you, Satan traps you by giving you wrong thoughts. That wrong thoughts create wrong picture. You speak it out because he knows you are made in the image of God. शैतान आपको गलत विचार देता है, वो गलत विचार आपके दिमाग में एक गलत तस्वीर बनाते हैं, एक गलत कल्पना दिखाते हैं आपको, और जैसे ही आप बोलते हैं अपने मुंह से शैतान जानता है कि आप परमेश्वर की छवि में बने हैं। You know? And I'm not talking about saying one time you said it. No, I'm talking about, have you met some people? They have a problem for every solution. और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक बार ही बोला तो होगा, लेकिन मैं उन बातों की बात कर रहा हूँ जो आप बार बार बोलते रहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों से मिले जिनको हर एक बात में कोई ना कोई समस्या होती है? I mean, like, if they were planted in the Garden of Eden, they would have found fault in Eden as well. अगर उनको अदन की वाटिका में रखा जाता तो उनको वहां भी दिक्कत होती है। They are always negative. उनको हमेशा हर बात में दिक्कत होती They है, are all the time speaking negative. वो हर समय नकारात्मक बोलते हैं। And show me one, if you say, I don't believe it, if it works or not. Okay. Show me one person who is all the time cribbing and complaining and crying about his life. Show me a good fruit out of that one person. One person. I'll repent from pulpit and change and won't preach this. If you find one person who has fruits in their life. और अगर आप कहते हैं कि ये शिक्षा काम नहीं करेगी तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाइए जो हमेशा कोसते रहते हैं अपने जीवन को, अपने आसपास की चीज़ों को, जो उनके पास है उसको हमेशा बुरा बोलते रहते हैं, तो उनके जीवन में क्या अच्छा फल है मुझे वो दिखाइए, मैं जो सिखा रहा हूँ बंद कर दूंगा।
That's why Satan is a master deceiver. We don't even know that he's using our energy, our power, our mouth, our words to destroy us. इसीलिए शैतान इतना बड़ा धोखा देने वाला है, क्योंकि उसको वो जानता है कि वो हमारे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, हमारी कल्पना को इस्तेमाल कर रहा है, हमारी रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए. I'm telling you, there are times when Satan has given me terrible thoughts and I start laughing. और कई बार शैतान ने मुझे बुरे विचार दिए और मैंने हंसना शुरू कर दिया उस पर. And then he would say, why are you laughing? और फिर बोलता है क्यों हंस रहा है. I said, because you are a loser. मैं कहता हूँ क्योंकि तू हारा हुआ है And I'm not falling for your tricks anymore. और मैं तेरे इन ट्रिक्स के लिए नहीं गिरूंगा. और Amen? We have to, so confession, you say what has been said or you agree. You can agree to what Satan says or you can agree to what God says. सो अंगीकार और कुछ नहीं, अंगीकार हामी भरना है. जो बात पहले से कह दी गई है उसमें आप हामी भर सकते हैं, जो परमेश्वर आपके लिए कहता है उससे, या फिर आप हामी भर सकते हैं जो शैतान आपसे कहता है उससे.